السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، سورہ رعد کا تسلسل ہے۔ 13ویں پارے کے نصف سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ابتدائی آیتوں میں ایمان والوں کی شان بیان فرمائی ہے اور اس کے مقابل میں کافروں کا معاملہ ہے، ان کا بھی انجام بتایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا پس وہ شخص جو یہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا وہ حق ہے، تو کیا یہ معلوم رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، یقین رکھنے والا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ انہیں ایمان والے کو آنکھ والا اور ایمان نہ رکھنے والے کو اندھے سے یہاں تعبیر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہری آنکھ تک بات محدود نہیں رہتی، بلکہ اگلے جملے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، اس کے سوا نہیں کہ صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، انہیں ایمان والے عقل والے ہیں، اس کا اشارہ دیا گیا۔ پھر ان کی شان بیان کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور کسی وعدے کو بھی وہ نہیں توڑتے، اور اللہ نے جن رشتہ داریوں سے ملائے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو ملائے رکھتے ہیں، اور اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور آخرت کے دن کا بھی ان کو خوف ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنے رب کے رضامندی کے خاطر صبر کرتے رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی خیرات کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، اور یہ گناہ ہو جانے کے بعد نیکی کے ذریعے اس کا دفاع کرتے ہیں، جیسا کہ کل ہم نے حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا تھا، بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی گناہ کبھی ہو جائے تو اس کے پیچھے فوری نیکی کر لو تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ یہی شان ایمان والوں کی ہے۔ اب ان کو بدلہ کیا دیا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے جنتیں ہیں اور نعمتیں وہاں ملیں گی، اور پھر فرشتے بھی ان کو ہمیشہ سلام کرتے ہوئے آتے جاتے رہیں گے۔ ایمان والوں کا ذکر کرنے کے بعد اب ان کی جو ضد ہے کافر، ان کے اوصاف، ان کی خرابیاں بھی بیان کی گئیں۔ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے وعدے کو پختگی کے ساتھ باندھنے کے باوجود توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رشتہ داریوں کو ملائے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہی ایسے لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت کی خرابی ہے۔ یہ ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ابتدائی آیتوں میں، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بات یہ تھی کہ یہود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عار دلایا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سمجھتے تھے کہ بس عورتیں اور نکاح کا معاملہ ہی بڑا اہم ہے، اور اگر یہ محمد عربی جیسے یہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول ہیں تو یہ عورتوں کے معاملات سے بہت دور رہتے، انہیں شادی نہ کرتے، اولاد کا معاملہ ان کے ساتھ نہ ہوتا۔ ایسا جب ان لوگوں نے عار دلایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولان گرامی کی مقدس جماعت کو بھیجا ہے، تو ان کے لیے بھی ہم نے بیویاں بھی رکھیں اور اولاد بھی رکھی۔ جب انسانی شکل میں
अंबिया किराम को भेजा जाता है तो बशरी तकाज़ों के मुताबिक इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इस बात का यहाँ जिक्र किया गया। फिर अगले रुकू में रब तबारक व तआला ने तकदीर के मामले में बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि हर चीज़ अल्लाह के पास लिखी हुई है। अब इस उम्मुल किताब यानी लौह महफूज से यमहुल्लाहु मा यशाउ व युज़्बित, अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है महफूज रखता है, और उसके पास उम्मुल किताब यानी लौह महफूज है। तो अब इसमें बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ चाहे मनसूख करे तो इससे मुराद शरीयत के अहकाम हैं, और फरिश्तों के जो सहीफ़े हैं उसमें तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं, और उससे हटके जो चीज़ें होती हैं, इन्हें इंसान की ज़िंदगी है, इंसान की मौत है, इंसान की शक़ावत व सआदत है, ये चीज़ें कभी तब्दील नहीं होती। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो रईसुल मुफस्सिरीन हैं फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ें इनके बारे में पहले ही से रब तबारक व तआला ने एक फ़ैसला फरमा दिया है, और जब चाहता है इसमें रब तबारक व तआला इजाफ़ा और कमी भी करता है, कमी बेशी होती रहती है। इसके लिए दलील के तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या नक़ल फरमाया जाता है कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे और रोते जाते थे और दुआ करते जाते थे कि ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझ पर बदबख्ती लिखी है या कोई गुनाह मेरे मुक़द्दर में लिख दिया है तो ऐ अल्लाह उसे मिटा दे, और क्योंकि तू जिस चीज़ को चाहता है मिटा सकता है और जिस चीज़ को चाहता है तू साबित व बाकी रखता है, और तेरे पास उम्मुल किताब है, और ऐ अल्लाह मेरे लिए सआदत व खुशबख्ती और मग़फ़िरत में इजाफ़ा फरमा दे। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसी कौल को तरजीह दी है अबू सऊद ने भी, और यही कौल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। तो यहाँ जहन में रहे कि तक़दीर दो किस्म की होती है, एक तक़दीर मुबरम और एक तक़दीर मुअल्लक़। तक़दीर मुबरम यह है कि जो चीज़ लिख दी गई उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, और तक़दीर मुअल्लक़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ़ शराइत के साथ तकदीर के कुछ बातों को मशरूत कर देता है कि बंदा अगर ये काम करेगा तो हम इसके साथ ऐसे तब्दीली तकदीर में लाएंगे। तो इस तरह रब तबारक व तआला जो चाहे कर सकता है, वह कादिर मुतलक है। फिर उसके बाद यहाँ एक और बात की तरफ भी इशारा किया गया, वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम यरो अन्ना नातिल अर्दा ननकुसहा मिन अतराफिहा, क्या इन लोगों ने ये नहीं देखा कि बेशक हम ज़मीन का इरादा करते हैं, ज़मीन की तरफ आते हैं तो उसको ज़मीन के अतराफ़ से कम करते चले जाते हैं। ज़मीन के अतराफ़ से कम करने से मुराद क्या है? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इससे मुराद ज़मीन के उलमा और फ़ुक़हा का दुनिया से उठा लिया जाना, और नेक लोगों का, मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का दुनिया से पर्दा कर जाना, ये ज़मीन का नुकसान है, ज़मीन में कमी वाक़ करना है। यही बात हज़रत मुजाहिद और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मरवी है। फरमाते हैं कि अल अर्दु तहया इज़ा मा आशा आलिमुहा मता यमुत आलिमुम मिनहा यमुत तरफ़ु, कि ज़मीन उस वक्त तक ज़िंदा रहती है जब तक कि इसके उलमा ज़िंदा रहते हैं। जब कोई आलिम इंतकाल कर जाता है तो उसका एक किनारा कम हो जाता है। कल अर्ज़ी तहया इज़ा मलगैसु हल्ला बिहा व इन अबा आद फी अकनाफिहा तलफु, जैसे ज़मीन है कि जब ज़मीन पर बारिश उतरती है तो ये ज़मीन ज़िंदगी पाती है, और अगर बारिश नहीं होती तो ज़मीन के हिस्से तलफ होते चले जाते हैं। तो बिला तशबीह व तमसील उलमा की मिसाल ज़मीन के लिए बारिश के पानी की तरह है कि इनका वजूद ज़िंदगी और ज़मीन के लिए ज़रूरी है, और जब ये उठते जाते हैं तो इससे ज़मीन में कमी गोया वाक़ होती है। इसीलिए फरमाया गया कि मौतुल आलिमी मौतुल आलम, कि एक आलिम का इंतकाल ये एक दुनिया का इंतकाल है। फिर उसके बाद इस सूरे की जो आखिरी आयत है इसमें रब तबारक व तआला ने फरमाया, काफिर ये कहते हैं ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान में गुस्ताखी करते हुए कि आप रसूल नहीं हैं, लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं। तो ऐ हबीब आप फरमा दीजिए, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए, क्या मतलब
کافر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو راست جواب کیوں نہیں دے رہا ہے، حبیب سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ یعنی یہاں یہ بتلایا گیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں منہ لگائے، ان کا جواب دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ بتانا تو ان کو مقصود ہے، مگر خطاب آپ سے کرنا ہمیں بہت پسند ہے، اس لیے ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اسی کے پاس کتاب کا علم ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ یقینی طور پر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سورہ رعد ختم ہوتا ہے۔ اگلا سورۃ ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یہ سورہ ہے۔ اس سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے یہاں اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ پھر اس سورہ میں مختلف احکام میں خصوصیت کے ساتھ جو بات بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اے لوگو اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو یقیناً میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ جو نعمت بھی ملے، اگر کسی کو علم کی نعمت ملے وہ شکر گزاری کرے تو وہ اس کا علم اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر کسی کو دولت ملے اور وہ اس نعمت کی شکر گزاری کرے تو اس کی دولت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دوسری اور نعمتوں کو بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ علم کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اس علم کو عام کیا جائے، اسے چھپا کر نہ رکھا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس علم کے مطابق عمل کیا جائے، تو پھر اس علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دولت کے شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی اس مال میں، دولت میں جو متعلق ہوتے ہیں اسے ادا کیا جائے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ اور دوسرے غریب، یتیم، مسکین، محتاج لوگوں کے ساتھ جو حقوق وابستہ ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے۔ یہ اس نعمت دولت کا یہ شکرانہ ہوگا، نتیجے میں رب تبارک و تعالیٰ اور دولتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ نعمتوں کی بات آتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی سورہ میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں، تم کو اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے کہ اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ تمہارے اپنے جسم پر تم غور کرو، تمہارے اپنی زندگی پر تم غور کرو۔ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو تو دیکھنا بھی نعمت ہے، تم کانوں سے سنتے ہو تو سماعت کرنا بھی ایک نعمت ہے، تم زبان سے چکھتے ہو تو چکھنے کی قوت بھی ایک نعمت ہے، تم ناک سے سونگھتے ہو تو یہ بھی سونگھنے کی قوت ایک نعمت ہے، تم دماغ سے سوچتے ہو، ہاتھ سے پکڑتے ہو اور محسوس کرتے ہو ٹھنڈے گرم کو، یہ تمام نعمتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جسم کی اندرونی خوبیوں، نعمتوں کو آپ غور کرتے چلے جائیں، ایسا دیکھتے چلے جائیں گے تو بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ البتہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی اور نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی طاقت تو دور کی بات ہے، اگر ہم صرف ہمارے زندگی کا جس پر دار و مدار ہے، جو سانس ہم لیتے ہیں، ان سانسوں کا بھی ہم شمار نہیں کر سکتے، دوسری نعمتوں کو گننا تو دور کی بات ہے۔ ایک سانس ہم اندر لیتے ہیں تو وہ ایک نعمت ہے، اور سانس باہر چھوڑتے ہیں تو یہ دوسری نعمت ہے۔ اگر اندر والی باہر نہ نکلے تو موت، اور باہر والی اندر نہ جائے تو موت۔ تو ایک سانس میں دو نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں کا ہم کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ ہم شکریہ ادا کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں، مگر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم پوری نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ تو اب جب شمار نہیں کر سکتے تو پھر بھی انسان کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے، سانسوں کی نعمت ہی کو لے لیجئے، ہم کوشش کریں تو ان کا بھی شمار کر سکتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جب تک تم جاگتے رہو گے ہو سکتا ہے کہ تم اپنی سانسوں کو شمار کرنے کی کوشش کر سکو، مگر جب تم سوتے رہتے ہو تو اس وقت کی سانسوں کا شمار کون کرے گا؟
تو بہرحال رب تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کی طرف توجہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور ان کی شکر گزاری کا حکم دے رہا ہے۔ حتی الامکان بندے کو اللہ کی ان نعمتوں کے شکر گزاری کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے اسی سورہ میں میدان محشر میں شیطان جو کہے گا لوگوں سے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان جب دیکھے گا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، جنتی جنت میں جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور جا چکے ہیں، اور دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں، تو اس وقت میں یہ دوزخیوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، تو میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، مگر صورتحال یہ تھی کہ مجھ کو تم پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا، مگر یہ ہے کہ صرف میں تم کو دعوت دیتا تھا برائی کی طرف، تم کو بلاتا تھا گناہوں کی طرف، تم دوڑ کے آ جاتے تھے۔ تو آج تم مجھ پر ملامت مت کرو، صرف اپنی ذاتوں کو ملامت کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس کا ذکر یہاں خصوصیت کے ساتھ فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو شیطان کے شر سے بچے رہے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جنت میں جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے۔ خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی پارے کے 13ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، غافل جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو، اللہ کو اس سے ظالموں کے اعمال سے غافل مت سمجھو۔ ظالم ظلم کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں پر کوئی عذاب نہیں آتا، ان کو ڈھیل ملتے جاتی ہے۔ تو کیا ظالموں کے ان کرتوتوں سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے جو ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بات ایسی نہیں ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس کے سوا نہیں کہ ہم انہیں قیامت کے دن کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی، نگاہیں پتھرا جائیں گی، اور اس دن کی ہولناکیاں رب تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ مجرموں کو تم دیکھو گے کہ یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کا جو لباس ہوگا وہ ڈامبر کا ہوگا جس سے آگ جلدی بھڑکے گی، اور ان کے چہروں کو بھی آگ ڈھانک لے گی۔ یہ تمام معاملہ اس لیے ہوگا کہ ان کے کرتوتوں کا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا پارہ اور اگلا سورہ ہجر ہے، 14واں پارہ ہے سورہ ہجر میں اصحاب ہجر کی بات کی گئی، اور اصحاب ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم یہ پتھر تراشی، سنگ تراشی میں بہت مہارت رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑے عمدہ مکانات، یہ بڑے مضبوطی والے مکانات بناتے تھے، گویا کہ یہ یہاں ہزاروں سال رہنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اور ان لوگوں کے مزاج کے مطابق جو آپ کو معجزہ دیا گیا وہ اسی پتھر سے ظاہر ہوا۔ پتھر کی ایک بڑی چٹان شق ہوئی، اور اس میں سے ایک زندہ اونٹنی برآمد ہوئی، اور وہ اونٹنی اسی وقت بچہ پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جس کا ذکر دوسرے اور پاروں میں، دوسرے اور سوروں میں کیا گیا ہے، کہ اس اونٹنی کو جو اللہ کی نشانی ہے تم لوگ تکلیف مت پہنچاؤ، مگر وہ لوگ تکلیف پہنچائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر عذاب آیا۔ چونکہ ان لوگوں کا اس سورے میں ذکر ہے، اس اعتبار سے اس سورے کو اصحاب الحجر کہا گیا۔ اب اس سورے میں جو پہلی بات ہے جو وہ یہ ہے کہ قرآن بڑی شان والی کتاب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اور ایسا کلام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ یہاں 14ویں پارے کے پہلے رکوع میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی حفاظت، اللہ جیسے چاہے حفاظت کرے،
मगर रब तबारक व तआला का करम यह है कि उम्मतियों ही में से कुछ सीनों को इसकी हिफाजत के लिए चुन लिया, जिन्हें हम हाफिज़ों के नाम से याद करते हैं कि कुरान हाफिज़ों के सीने में महफूज रब तबारक व तआला ने कर दिया है। अब इसकी हिफाजत का हर ज़माने में तरीक़ा यही रहा और कुरान महफूज चला आ रहा है और क़यामत तक महफूज रहेगा। इसके एक नुक्ते में भी कोई फ़र्क वाक़ई नहीं हो सकता। इस ज़िमन में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि एक शख्स ने जो बड़ा अच्छा ख़त्तात था, खुशख़ती में माहिर था, उसने इरादा किया कि तौरात और इंजील और कुरान को अपने क़लम से लिखे। बड़े प्यारे अंदाज में, बड़ी खुशख़ती में उसने इन तीनों किताबों को लिखा, तौरात भी, इंजील भी और कुरान करीम भी। मगर उसने तीनों किताबों में, आसमानी किताबों में तहरीफ और तब्दीली कर दी। तौरात की आयतें भी बदल दी, इंजील की आयतें भी बदल दी, कुरान की आयतें भी बदल दी। तौरात, बदली हुई तौरात वो लेकर यहूदी उलमा के पास गया तो वो लोग देखते ही उस गलती को भांप गए। तौरात में जो रद्द-ओ-बदल हो चुका था उसको महसूस कर लिए, मगर उसके बावजूद उन लोगों ने उस तौरात को होंठों से लगाया, आँखों से लगाया और इस लिखने वाले को मालो दौलत के ज़रिए से एज़ाज़ व इकराम से नवाजा। फिर उसके बाद वो शख्स बदली हुई इंजील यहूदी ईसाई उलमा के पास लेकर पहुंचा तो वो लोग भी उसको बड़ी कीमत दे के ख़रीदे और इसको बहुत इज्जत दिए। अब उसके बाद वो बदला हुआ कुरान लेकर मुसलमानों के बुज़ुर्गों के पास आया तो उन बुज़ुर्गों ने जब कुरान करीम में तब्दीलियाँ देखीं तो फौरी तौर पर उसको पकड़ लिया। न सिर्फ पकड़ा बल्कि वहीं उसे मारा और फिर उसके बाद हाकिम वक्त के पास उसका मामला पेश कर दिया। हाकिम वक्त ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसको मार देने का हुक्म दिया। तो उस वक्त में उस शख्स ने अपने इस्लाम का ऐलान किया और बताया कि बात दरअसल ये है कि मैं इम्तिहान लेना चाहता था और देखना चाहता था कि कौन सा दीन हक़ है, इसलिए मैंने ये तरीक़ा इख्तियार किया था और मेरे इस तरीक़े से ये बात वाज़ेह हो गई कि ना तौरात मौजूदा हालत में सही हालत पर बरकरार है, ना तौरात के मानने वाले, ना इंजील सही मौजूद है, ना उसके मानने वाले हक़ पर हैं। बस कुरान है जो हक़ है, महफूज है और इस्लाम है जो सच्चा दीन है कि इसके मानने वाले इसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये हिफाजत की सआदत रब तबारक व तआला ने इनके ज़िम्मे की है कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया जो इससे पहले भी गुजर चुका है। अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा करने के बाद फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। सब फरिश्ते सजदा किए सिवाय शैतान के। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि तू सजदा करने वालों में क्यों नहीं रहा? तो वो कहने लगा कि जिससे तूने मिट्टी से बनाया है मैं उसे सजदा करने वाला नहीं हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मरदूद बना के निकाला। तो उस वक्त में अल्लाह से उसने कहा कि मैं तमाम इंसानों को बहकाऊँगा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे जो खालिस किए हुए बंदे यानी तेरे जो औलिया हैं उनको मैं बहका नहीं पाऊँगा। ये खुसूसियत के साथ यहाँ बयान किया गया। फिर उसके बाद अगली आयतों में जन्नत व दोज़ख का जिक्र है। खुसूसियत के साथ ये बात बताई गई है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के पास तशरीफ़ लाए तो देखा सहाबा आपस में बैठकर खुशियों में मसरूफ़ हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम हंस रहे हो जबकि तुम्हारे सामने जन्नत और दोज़ख है? नहीं, तुम्हें अभी कोई यकीन नहीं है कि तुम जन्नत में जाओगे या दोज़ख में, उसके बावजूद ये हंसी कैसी? तो ये चीज़ सहाबा पर बड़ी दुश्वार गुजरी। सहाबा को बड़ी तकलीफ़ होने लगी कि वाकई हमारा अंजाम क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं है। तो रब तबारक व तआला ने सहाबा की तसल्ली के लिए, क़यामत तक आने वाले ईमान वालों की तसल्ली के लिए
यहाँ एक आयत नाजिल फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना आज़ाबी हुवल आज़ाबुल अलीम। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं गफूर रहीम हूँ, बख्शने वाला रहम करने वाला हूँ, मगर साथ में ये भी बता दीजिए कि यकीनन मेरा आज़ाब बड़ा सख्त है। मेरा आज़ाब बड़ा सख्त है। क्या मतलब? अगर तुम अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक अदा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बे इरादा हो जाने वाले गुनाहों की मग़फ़िरत करने वाला हूँ, तुम पर रहम करने वाला हूँ, तुम खुशियाँ मना सकते हो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें मेरे आज़ाब से डरना होगा और खुशियाँ मनाने से बचना होगा। इसीलिए दूसरी जगह फरमाया गया फ़लियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा। बंदों को चाहिए कि वो ज़्यादा ना हंसें, ज़्यादा रोएं, कसरत से ना हंसें, कसरत से रोएं। ये अल्लाह तबारक व तआला का तरीक़ा है। जैसे हम इससे पहले भी बता दिए हैं कि रब तबारक व तआला तरगीब और तशवीक़ के साथ तरहीब और तख़वीफ़ का पहलू भी रखता है। जहाँ लोगों को शौक़ पैदा करता है वहीं लोगों को खौफ भी दिलाता है, ताकि क्यों? इसलिए कि ईमान नाम ही है बैनल खौफ़ी व रजा। अल ईमानु बैनल खौफ़ी व रजा। ईमान नाम है खौफ और उम्मीद के दरमियानी दर्जे का। यानी अल्लाह का खौफ गालिब होकर बिल्कुल उम्मीद ख़त्म ना हो जाए और उम्मीद में डूब कर खौफ अपने दिमाग से ना निकाल दें, बल्कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी हो कि वो हमें हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा और साथ में उसकी ज़ात का खौफ भी हो कि हम गुनाह करने से बचते रहें। फिर उसके बाद तकरीबन ये सूरा ख़त्म होता है और इस सूरे में आखिरी आयतों में रब तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़वरब्बिका लनस्अलन्नहुम अजमाइन। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, यकीनन हम इन सबों से सवाल करेंगे। इन्हें मैदान महशर का जिक्र किया जा रहा है कि सबसे सवाल होगा, सबसे सवाल होगा। मुफस्सिरीन किराम यहाँ एक बात फरमाते हैं कि देखो, यहाँ तो अल्लाह ने फरमाया कि सबसे हम सवाल करेंगे, मगर यही कुरान दूसरी जगहों पे इसके बरखिलाफ भी जिक्र करता हुआ नज़र आता है। जैसे अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, कि इनसे मुजरिमों के गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया सूरह रहमान में कि फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, कि बस आज के दिन यानी क़यामत के दिन किसी भी इंसान और किसी भी जिन से उसके गुनाह के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। अब इन मुख्तलिफ आयतों में तत्बीक़ की क्या सूरत है, मुताबकत पैदा करने की क्या सूरत है? एक तरफ अल्लाह फरमा रहा है कि हम सबसे सवाल करेंगे, दूसरी तरफ अल्लाह फरमा रहा है कि हम किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। तो सवाल और अदम सवाल, इन दोनों में मुताबकत की क्या सूरत होगी? तो इस सिलसिले में कहते हैं कि मैदान क़यामत के मुख्तलिफ माहौल होंगे। एक वक्त ऐसा होगा जब किसी से कोई सवाल नहीं होगा, और एक वक्त ऐसा होगा जब हर एक से उसके तफसीली मामलात के बारे में सवालात होंगे। तो इसमें गोया दोनों हालतों की तरफ इशारा किया गया। और दूसरा जवाब मुफस्सिरीन किराम ये भी देते हैं कि रब तबारक व तआला पूछेगा। यौमुल जज़ा इसीलिए रखा गया है ताकि पूछा जाए, हर एक को उसके आमाल के मुताबिक बदला दिया जाए। अल्लाह हम सब पर करम फरमाए और मैदान महशर की सख्तियों से बचाए। लेकिन फिर भी लोगों से जो सवाल होगा, अल्लाह आलिमुल गैबि व शहादा है, सब कुछ जानता है, हर एक का गुनाह, हर एक की नेकियां उसको मालूम है, फिर भी सवाल करेगा। तो ये सवाल इल्म हासिल करने के लिए नहीं होगा। हम किसी से कुछ पूछते हैं तो मालूमात हासिल करने के लिए पूछते हैं, इल्म हासिल करने के लिए पूछते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला जब पूछेगा तो ये अल्लाह मालूमात के तलब करने के लिए नहीं पूछेगा, बल्कि उनको डांटने और डपटने के लिए पूछेगा कि क्या तुमने ये नहीं किया था, क्या तुमने ये नहीं किया था, तुम्हारे ये आमाल हैं, तुम्हारे ये करतूत हैं। और इसमें इत्माम हुज्जत भी है कि जब सबसे पूछा जाएगा, सबको उनके करतूत याद दिला दिए जाएंगे, अब उसके बाद उन करतूतों के मुताबिक अगर आज़ाब दिया जाए तो किसी को एतराज़ का भी बज़ाहिर कोई मौका बाकी ना रहेगा। फिर उसके बाद अगला सूरा सूरह नहल है।
सूरह नहल के बारे में, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, चूँकि इस सूरह में शहद की मक्खी का जिक्र है, इस एतबार से इसे सूरह नहल कहा गया। इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह नहल का एक नाम सूरतुन नियाम भी है, नेमतों का सूरा, चूँकि इस सूरह में रब तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतों का शुमार फरमाया है जो उसने अपने बंदों पर किए हैं। इस एतबार से इस सूरह को सूरतुन नियाम का भी नाम दिया गया। इस सूरह में भी बहुत सारे मज़ामीन हैं, अल्लाह की नेमतें, उसकी वहदानियत, उसकी खालिकियत व मालिकियत का भी ज़िक्र है, ईमान वालों की कामयाबियों का भी ज़िक्र है, और काफिरों के नाकामी और उनका जो अंजाम होने वाला है उसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ज़िक्र फरमाया है। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने एक बात इस सूरह में खुसूसियत के साथ ये इरशाद फरमाई कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, कि हमने ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले सिर्फ मर्दों ही को रसूल बना के भेजा, जिनकी तरफ हम वही नाजिल फरमाते हैं। इस जुमला मुबारका से मुफस्सिरीन किराम ने ये इस्तिंबात किया है कि नबूवत सिर्फ मर्दों में रखी गई, किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया। हाँ, औरतें वली हो सकती हैं, विलायत के आला दर्जों पर फायज हो सकती हैं, मगर नबूवत का जो मनसब है ये महदूद है मर्दों के साथ, खुसूसियत के साथ। यहाँ भी और दूसरी जगहों पे भी रब तबारक व तआला ने इसका जिक्र फरमाया है। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ऐ ईमान वालो तुम इल्म वालों से सवाल करो, मालूमात हासिल करो अगर तुम नहीं जानते, यानी किसी चीज़ का तुम्हें इल्म ना हो तो उलमा से मालूम करो। कौन से उलमा? जो बिल बैयिनाति व ज़ुबुर, जो दलीलों को जानते हैं, किताबों को जानते हैं, किताबों को जो जानते हैं। तो किताबें ये इल्म का ज़रिया है, किताबों को पढ़ाने वाले ये इल्म हासिल करने का ज़रिया है। तो तुम इल्म हासिल करो और जो मसला भी तुम्हें मालूम ना हो उसके मालूम करने में शर्म न महसूस करो, बल्कि उलमा से पूछते रहो, मालूमात बढ़ाते रहो और उसके मुताबिक अमल करने की पूरी कोशिश करते रहो। फिर उसके बाद सजदे तिलावत है 14वें पारे के निस्फ के पास। सजदे तिलावत ये तीसरा सजदा है। पहला सजदा 9वें पारे में गुजरा था और दूसरा सजदा 13वें पारे में कल, और आज ये तीसरा सजदा है। और इसमें ये बताया गया है कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह के लिए सजदा किना है, और फरिश्ते भी अल्लाह की बारगाह में सजदा किए हुए हैं, और वो अकड़ते नहीं हैं, वो अपने रब का खौफ रखते हैं, और जो अल्लाह हुक्म देता है उसी की वो तामील करते हैं, उसी के मुताबिक अमल करते हैं। जब यहाँ कायनात की हर शय के सजदे में होने का जिक्र हुआ, फरिश्तों के सजदे में होने का जिक्र हुआ, तो हमको भी इस आयत के पढ़ने या सुनने पर सजदा करने का हुक्म हुआ। ये सजदा तिलावत है जो वाजिब है, इसको ज़हन में रखें। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने जो इंसान के लिए नेमतें बरसाई हैं उसका कुछ तफसील के साथ यहाँ जिक्र फरमाया है। चुनांचे अल्लाह फरमाता है कि आसमान से अल्लाह ही ने बारिश को बरसाया है, इसी बारिश से अल्लाह ने ज़मीन को उसके खुश्की के बाद, उसके मुर्दनी के बाद दोबारा ज़िंदगी दी है। ये अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह की जानिब से बंदों के लिए एक नेमत है। फिर अल्लाह ने फरमाया जो चौपाया जानवर हैं इनमें तुम्हारे लिए इबरत है, सबक है कि इन्हीं जानवरों के पेटों से निकलने वाला जो दूध होता है, जो खून और नजासत के दरमियान से निकल कर आता है, वह खालिस दूध होता है, और पीने वालों के लिए बेहतरीन ये दूध रखा है रब तबारक व तआला ने। ये भी अल्लाह की एक नेमत है। इसी तरह खजूर और अंगूर और इसलिए इससे बनाए जाने वाले मशरूब, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। इन सबों का जिक्र करते हुए इस सूरे में, सूरे का जो नाम है सूरतुन नहल, शहद की मक्खी, उसके पेट से निकलने वाला, उसके मुंह से निकलने वाला जो शहद है, उसकी भी नेमत और इफादियत का यहाँ रब तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है। और
शहद के बारे में जहन में रहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 70 बीमारियों के लिए शिफा है। शहद का इस्तेमाल ये बहुत मुफीद, रब तबारक व तआला ने यहाँ बतलाया कि ये मुख्तलिफ़ रंग के और मुख्तलिफ़ मज़े वाले फूलों को शहद की मक्खी चूसती है और उसके बाद लोगों के लिए उसके मुंह से, उसके पेट से शहद निकलता है जिसमें शिफा ही शिफा है। रब तबारक व तआला ने यहाँ खुसूसियत के साथ शहद का जिक्र फरमाया। अब यहाँ उस हदीस की तरफ भी आपके जहन को मुतवज्जह करना मुनासिब है कि शहद तो मुख्तलिफ़ फलों के रस के निचोड़ का नाम है और फूलों का जो मामला है, इनके पानी का जो मज़ा होता है, इनके रस का जो मामला होता है वो कड़वा कसेला होता है, उसमें मिठास नहीं होती। तो फिर इन फूलों से चूसे जाने वाले इस रस में मिठास कहाँ से आ गई? जब शहद की मक्खी से ये पूछा गया तो शहद की मक्खी ने ये जवाब दिया था कि जब हम फूलों को चूसने के लिए जाते हैं और चूस कर वापस आते हैं और अपने जत्थे में शहद जमा करते हैं तो इस दौरान हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते आते दुरूद पढ़ते रहते हैं। इसी दुरूद की बरकत है कि ये कड़वा कसेला पानी भी शरबत जैसा मीठा, बल्कि उससे भी मीठा हो जाता है, जिसे हम शहद के नाम से जानते हैं। रब तबारक व तआला ने इसमें शिफा रखी है, इसका जिक्र यहाँ किया गया। फिर उसके बाद अल्लाह ने इंसानों की अपनी जानों में जो नेमतें हैं उसका जिक्र फरमाया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ही तुम्हें पैदा करता है, वही तुम्हें वफ़ात देता है, वही तुम में से कुछ लोग वो हैं जो बड़ी उम्र तक पहुंचा दिए जाते हैं ताकि इंतहाई उम्र को पहुंचने के बाद फिर बचपन की कैफियत की तरफ लौट आएँ। जैसे बचपन में कोई इल्म न था, अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे, वही कैफियत जिसे अरबी ज़ुबान में अर्ज़लुल उम्र कहा जाता है, उस तक पहुंचाने वाला भी वही है। अर्ज़लुल उम्र बंदे की ऐसी उम्र जिसमें वो दूसरों का मोहताज हो जाए, कुछ बोलने के काबिल न रहे, अपनी जगह पड़ा रहे। तो हदीस पाक में आया है कि तुम लोग अर्ज़लुल उम्र से अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो। ये सही है कि बीमारियां इंसान के गुनाहों का कफ़ारा होती हैं। मुसीबतें जो आती हैं, बलाएं जो आती हैं, ये इंसान के गुनाहों का कफ़ारा, और अगर गुनाह ना हो तो दराजात की बुलंदी का सबब होते हैं। मगर इंसान दूसरों का मोहताज हो जाए, इतनी लंबी उम्र को पहुंच जाए जहां वो अपने से कुछ ना कर सके, अपने से कुछ कह ना सके, अपने से कुछ जान ना सके, अपने से कुछ समझ ना सके, ऐसी कैफियत तक पहुंचने से जिसे अर्ज़लुल उम्र कहा जाता है, हदीस पाक में पनाह मांगने का हुक्म दिया गया। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम में रिस्क के दरमियान तफावत रखा है। किसी को बहुत ज़्यादा मालदारी अता फरमाई है, किसी को दरमियाने और औसत दर्जे में रखा है, किसी को गरीब व मोहताज बनाया है। अगर सब के सब एक दर्जे में होते तो किसी एक नेमत की भी कदरदानी ना हो पाती, इसलिए अल्लाह ताला ने दर्जात में ये तफावत रखा है। तो अब उसके बाद ये भी फरमा दिया गया इशारतन कि जिनको मालो दौलत से सरफराज किया गया है, उनकी जिम्मेदारी ये है कि अपने पास जो ज़ायद माल है उससे वो अपने मातहतों, गरीबों, मोहताजों के हुकूक़ को अदा करें। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी अपनी जानों से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, और रब तबारक व तआला ने तुम्हारे जोड़ों से तुम्हारी औलाद और नस्ल को पैदा किया है। फिर रब तबारक व तआला ने तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया है। तो जब ये सब अल्लाह की शान है, रब तबारक व तआला तुम्हारे साथ इनाम और इकराम का मामला कर रहा है, तो उसके बावजूद ये ईमान ना लाने वाले ये बातिल को क्यों मानते हैं, खुदा को क्यों छोड़ते हैं? हर नेमत का अता फरमाने वाला खुदा है, तो उनको चाहिए कि वो अल्लाह ही की इबादत करें, अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने इबादत के लिए अपना माथा ना टेकें। ऐसे खुदाओं की इबादत ना करें जो रिस्क के मामले में कुछ भी मालिक नहीं हैं, कुछ भी देने की ताकत नहीं रखते। जो कादिर मुतलक है, जो सब कुछ अता कर सकता है, वही ज़ात लायक इबादत भी है और लायक तारीफ़ भी है। उसी की तारीफ़ करते रहो और उसी के गुण गाते रहो और उसी की इबादत करते रहो। खुसूसियत के साथ इस सूरे में इस बात का जिक्र किया गया। आज हम इसी पर इक्तफ़ा करते हैं
سوا پارہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آگے پھر کل تفسیر کا اسی وقت خلاصہ سوا پارے کا بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب کو حق بولنے، سننے، سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔